Hello everyone. I hope by now everybody out there watching this video is aware of the fact that SEBI Grade A 2022 notification has been released. Phase 1 exam is on 20th of Feb, Phase 2 is on 20th of March, and there are a total of 80 vacancies in the journal stream. We knew that the notification is going to come. Many of us started the preparation also. But the day the notification comes, there is a different feeling altogether. है ना? We start feeling the pressure because by now we know the date by which we have to prepare. There are no ifs and buts. We need somebody to hold direction and take us to our destination. We need somebody to hold our hands. ऐसी फीलिंग आती है ना? अगर आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए and I will assure you that I'll help you out. इन दिस वीडियो में आपको कोई स्टडी प्लान नहीं बताने वाला हूं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताने वाला हूं. रेदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी, अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क दैट यू नीड टू फॉलो टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 एग्जाम्स. इफ आई पुट इट शॉर्ट, I am going to tell you 7 key principles that you need to adhere to have a well sought out preparation, an effective preparation, a directed preparation. ठीक है, तो अगले 15 मिनट ध्यान से सुनिएगा. एक एक वर्ड इज गोइंग टू बी अ गोल्डन वर्ड फॉर यू. इफ यू कैन अप्लाई ऑल दैट, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट शॉट फॉर सेबी ग्रेड ए 2022. सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट, सारे एक एक नोटबुक लें और उस पर ये चीज जरूर लिखें. आई विल गिव माई 100% नो मैटर वॉट. जो ये है ना, नो मैटर वॉट, कुछ भी है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है. आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना टाइम है उतना पढ़िए, बट एश्योर दैट यू विल गिव योर 100%. यू फील दैट आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है. Just trust your instinct. Try to find some important chapters which we will be helping you out. Try to put some effort to at least understand the basic numericals. You can still get through. आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, कोई इशू नहीं है. Think positive. If 50% engineers could clear last year, you also have a chance. It's all about not finding 100 excuses, rather finding only a single reason to give your 100%. अगर आप ये लाइन अपनी नोटबुक में नहीं लिख पा रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि आप अपना 100% दे पाएंगे, तो आप इसी इंस्टेंस पे ये वीडियो देखना छोड़ दीजिए और प्रिपरेशन बंद कर दीजिए. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. नो मैटर व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, व्हाट मैटर्स इज दैट आई विल गिव माई 100%. Now I'll discuss with you 7 key principles. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. What I see over YouTube when the notification comes, study plans, patterns, syllabus, सब लोग यही बता रहे हैं, but we need to understand something important. First principle is 20:80 rule. What is this 20:80 rule? Guys, you need to understand that your paper 1 in phase 1 is just qualifying. उसमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए, and the knowledge you gain for phase 1 paper 1 is not going to be useful in your phase 2 at all. Paper 2 on the other hand is something that is really important for you, right? Paper 2 is something that is not only there in phase 1 but it is also there in phase 2. So an effective preparation for paper 2 right from your phase 1 will also help you to score good in phase 2, and that is what really matters. ठीक है, हमारा ओवरऑल गोल क्या है? क्या हमारा ओवरऑल गोल है phase 1 क्लियर करना? नहीं. The bigger picture is to get selected, and if I have to get selected, I have to perform well in paper 2, whether it is phase 1, whether it is phase 2. तो अगर मैं फेज 1 के पर्सपेक्टिव से बात करूं, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू शुड बी डिवोटिंग टू पेपर 1 एंड पेपर 2 शुड बी इन रेशियो ऑफ 20:80. भले ही आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत खराब है, डजंट मैटर. Still you have to get only 30 marks, and out of those 30 marks you can easily get 12-13 marks in GA. Now why to bother about paper 1 so much? I know there are many people who get shivers when they hear about paper 1. पर अगर आप 30 marks भी नहीं ले सकते, I know आप paper 2 में भी कुछ बहुत नहीं उखाड़ लेंगे. ठीक है,
तो हमें कुछ भी हो, चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, मे बी यू मेक इट 30:70, बट योर मेजर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, द मेजर टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड हैज टू बी स्पेंड ऑन पेपर 2। ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, मैक्सिमम 40 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 40 से ज्यादा टारगेट कर रहे हैं पेपर 1 में, देयर इज नो यूज ऑफ दैट, देन योर प्रिपरेशन इज टोटली इन अ अनवांटेड डायरेक्शन। और यहां पे I would say minimum 60 plus. By the time you give your phase 1, I would say although qualifying 40% है, but you should be prepared to such an extent that you are able to score minimum 60 in paper 2. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरह से अगेन अपनी कॉपी पे नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। The second principle is again very very important, which is with respect to paper 2. Quality precedes over quantity. See, when you see the syllabus, there are a lot of subjects. Management is there, right? Costing is there. Company law is there. Finance is there. Then accounts is there. Then we have eco is there, economics. The moment you see such huge number of subjects, 6 is no less. The moment you see such large number of subjects, you are overwhelmed. कैसे करेंगे इतना कुछ, इतना syllabus कैसे होगा? And then you start doing everything. ठीक है, कि थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा वो कर लें, जो रेलेवेंट है उसको छोड़ दिया, इररेलेवेंट चीज को पढ़ लिया, कि जो हमें समझ आ रहा है वो पढ़ लें। दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर। क्वालिटी इज समथिंग दैट विल मैटर द मोस्ट। अल्टीमेटली यू हैव लॉट ऑफ टाइम। यू डोंट ओनली हैव टू प्रिपेयर फॉर फेज 1 टू गेट सेलेक्टेड, यू ऑल्सो हैव टू क्लियर फेज 2। और फेज 1 तो आप आधा पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वॉट एवर प्लान यू मेक, whatever strategy you use, take into account that you don't have only 45 days. You have another 30 days after phase 1. What I'm trying to say is that कि अगर सपोज कीजिए आप अभी शुरू कर रहे हैं या आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, आपको लगता है कि आप नेक्स्ट 45 डेज में ये 6 सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Doing all these subjects in a bad manner is not a right technique. Rather, I would say go for quality. Do even 4 subjects, but do them properly with proper revision. That will not only help you to sail through phase 1 easily, but that will also make you stand in a I would say good position for phase 2. ठीक है, तो क्वांटिटी पे नहीं जाना है कि सब कुछ कर लें, थोड़ा थोड़ा कर लें, जितना समझ आ रहा है बस उतना कर लें, नहीं। क्वालिटी पे जाना है। भले ही फेज 1 से पहले आई एम एबल टू डू 4 सब्जेक्ट्स, बट आई विल डू दोज 4 सब्जेक्ट्स इन एंड आउट। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई विल डू प्रॉपर रिवीजन एंड टू सेलेक्ट दोज 4 सब्जेक्ट्स यू कैन डू योर स्वॉट ऑल्सो। अगर आप आरबीआई की तैयारी में फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, 2 सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी डन, मे बी देन यू कैन पिक अनदर 3 एंड डू अ टोटल ऑफ 5 नॉट 6। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड फाइनेंस। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को भी ज्यादा मत छेड़िए। अगर करना भी है तो इकोनॉमिक्स में जस्ट रीड द मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। माइक्रो इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। सिमिलरली अकाउंट्स आप सारा नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर फेज 1 यू कैन जस्ट टारगेट से जर्नल एंड लेजर एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, common errors, principles of accounting, bills of exchange, all those basic chapters you can do, and still you can score say 3-4 marks out of say 10 to 12 marks or 15 marks out of accounting. ठीक है, तो quality precedes over quantity. That is going to be the mantra in principle 2. The next principle is for phase 2, especially for descriptive English, respect versus pretending ignorance. अब आपको पता है आपका फेज 2 में पेपर 1 क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। पेपर 2 क्या है आपका, अगेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 कंपोनेंट्स। नाउ द कॉमन थिंग विच मोस्ट ऑफ यू वुड डू इज कि आप पेपर 2 पे अपनी सारी प्रिपरेशन, सारी हिम्मत, सारा टाइम लगा देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये तो हो जाएगा।
कॉम्प्रिहेंशन तो स्कूल में किए हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, और आप इस पे 10% टाइम भी नहीं लगाएंगे। डू यू थिंक ऐसा करना चाहिए? दिस इज 1/3 वेटेज से 33 मार्क्स, दिस इज 66 मार्क्स, दिस इज स्टिल गिविंग यू गुड मार्क्स आउट ऑफ 100। इसकी भी 1/3 वेटेज है। इज इट गुड? Is it wise to give only 5 to 7% of our time to descriptive English? Not at all. I know many people who scored 70 plus in phase 2 last year, but they could score only in 40s in descriptive English and they lost their seat. पेपर 2 में बहुत अच्छा कर लिया, पेपर 1 में नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमें चांस नहीं लेना है। स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आप नहीं प्रिपेयर करेंगे, यू माइट गेट गुड मार्क्स, बट वाई टू टेक अ चांस? जब आप इस पे 100, 200, 300 घंटे पढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको बहुत ज्यादा टाइम दो या इस रेशो में टाइम दो, नहीं, बट एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डू नॉट जस्ट प्रिटेंड इग्नोरेंस कि ये तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एंड इफ यू स्कोर वेल हेयर एंड डू बैड हेयर, इट इज यू एंड ओनली यू टू बी ब्लेम्ड। This is principle number 3. Now coming on to principle number 4, which is valid for both phase 1 and phase 2 PYQs. When any notification comes, what is given in the notification is syllabus and pattern. Syllabus and pattern are like two headlights of the car. No doubt we have to go through syllabus and pattern again and again to understand the demand of the exam. But तीसरी चीज which can act as third eye, like of Shiva's third eye to you, which can give you constant direction, which can act as a hand of God for you to decide what to do, are PYQs, are previous year questions. आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जितने भी सेबी 2020 एग्जाम में पूछे गए थे, एंड नॉट ओनली सेबी. It has been observed that many of the questions asked in SEBI were repeated questions from RBI, right? So we have to do even previous year papers of relevant subjects, right, of RBI. Say FM, which is common to RBI and SEBI, I'll do previous year questions of FM from RBI also. Economics is common, I'll do previous year questions of economics from RBI also, except current affairs like schemes and reports. Theory, static, I'll do there. नाबार्ड में जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं हम करेंगे. एनपीएस, पीएफआरडीए, जितने भी क्वेश्चन आए इनके पेपर्स में, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द सिलेबस ऑफ सेबी, सो आई विल डू देम. तो ये तो हमें करने ही करने हैं. वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज दैट वी विल नॉट बी डूइंग इट. ये तो सबसे पहले आप लेके बैठिए, कुछ भी पढ़ें साथ में पीवाईक्यूज जरूर रखें. और अगर पीवाईक्यूज नहीं है, दैट इज अ कॉमन क्वेरी अगेन कि हमारे पास पीवाईक्यूज है. डोंट वरी गाइज, वी हैव ऑल द पीवाईक्यूज विद अस except PFRDA, which we shall be pushing in few days. But meanwhile, there is a link in the description of this video through which you can find all the PYQs of SEBI, RBI and NABARD for all the previous year papers starting 2017, including phase 1 and phase 2. आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वांट किस लेवल का आता है, न्यूमेरिकल्स किस लेवल के आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं या नहीं आते हैं, वो आपके PYQs देखकर 100% सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू PYQs पे जरूर जाएं और उनको बार बार देखें. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू रिलेट विद देम दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड क्लैरिटी हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. Next principle is again very, very important. See, your learning is only useful to your goal if it is relevant. What do I mean by this? The key word here is relevant. एक example लेते हैं. Now, numericals are asked in SEBI. नहीं पता है तो सुन लीजिए, numericals आते हैं. Current affairs are not at all asked in SEBI. तो हमारे लिए क्या relevant है? Numericals. और बहुत लोग होंगे दे विल गिव अप इवन बिफोर स्टार्टिंग कि सर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये तो मैं 10 नंबर छोड़ के ही जा रहा हूं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूं जिसमें से शायद 2-3 क्वेश्चन आ जाए, मैं वो कर लूंगा. अरे भाई, दिस इज समथिंग रेलेवेंट, ये आपको करना ही होगा. आप भले ही इसमें से तैयारी की करें और 10 क्वेश्चन ना कर पाए, 5 तो कर पाएंगे, दैट इज मोर देन एनफ.
यहां पे आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन जब ये आने ही 0 नंबर के हैं या नेग्लिजिबल आने, देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग अप एफर्ट हियर, स्पेशली द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, दे हैव अ कॉमन नोशन दैट फाइनेंस और ईएसआई के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर आरबीआई, दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर सेबी। भैया उन्होंने इतना सिलेबस दे दिया भर भर के, उसमें से ही अगर वो 50 क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे तो मतलब तो फायदा ही क्या है उस सिलेबस का। ठीक है, तो ये रेलेवेंसी पे हमें बहुत ध्यान रखना है। और रेलेवेंसी कैसे पता चलेगी? अगेन इफ यू गो टू द फोर्थ प्रिंसिपल विच इज रिलेटेड टू पीवाईक्यूज, बार बार उसको देखें, सारा ज्ञान मिल जाएगा। सिक्स्थ, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IQ, ध्यान से पढ़िए, IQ will make you ready, but it is EQ which will enable you to excel. जो आपका IQ है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी नॉलेज है जो आपको पढ़कर आएगी, आप उससे एग्जाम रेडी हो जाएंगे। बट इन द एंड इट इज ऑल अबाउट दोज 40 मिनट्स। ये 40 मिनट्स में आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है, बिकॉज इट विल डिसाइड योर करियर। सो हेयर द EQ becomes really really important. No matter how much you have studied, no matter how much knowledge you have, but till the time you are not able to develop this EQ to give your best in the 40 minutes, you will not be able to score what you could have scored with a better EQ. EQ का मतलब नहीं पता है तो समझा देता हूं। EQ means your ability to handle pressure. एग्जाम में आप प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? सब कुछ आता है, प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देंगे। EQ is the ability to adjust to the difficulty level of the exam. एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, पैनिक ना करें, कट ऑफ लो जाएगी, अंडरस्टैंड करें, उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करें, ओवर अटेम्प्ट ना करें। EQ is the ability to switch over to the next question and do not waste time on the current question if you are not able to solve. All that comes under EQ and it is very very important because ultimately आपको ये 40 minutes में दिखा देना है that you deserve this job. ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए I always tell you to practice as much MCQs. सिर्फ MCQs नहीं, पढ़ने के बाद MCQs। नॉलेज होगी तभी उन MCQs को एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में, एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट कर पाएंगे टू डेवलप दैट एबिलिटी टू गिव योर बेस्ट इन अ लिमिटेड टाइम, टू डेवलप दैट एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस, टू डेवलप दैट एबिलिटी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, तो ये अगेन आप नोट कीजिए, आपको इस पे काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई 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 करने से यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट दैट यू डिजर्व। Seventh, be productive, not busy. This is again very very important. बहुत लोग क्या करते हैं, again as I told you, when the notification comes we are suddenly overwhelmed. बहुत कुछ करना है जल्दी जल्दी में, 2 चैप्टर कॉस्टिंग के पढ़ लिए, 1 चैप्टर फाइनेंस का पढ़ लिया, 1 चैप्टर मैनेजमेंट का पढ़ लिया। we kind of waste our 10 days and we are not able to complete anything concrete. हम उसमें बिजी तो हुए बट हम प्रोडक्टिव नहीं हुए। प्रोडक्टिविटी लाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग लिमिटेड थिंग्स। कुछ लिमिटेड थिंग्स पे फोकस कीजिए फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, से फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज आई वुड बी फोकसिंग ओनली ऑन 2 to 3 सब्जेक्ट्स। आई विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम ऑफ माई इनपुट्स हियर। आपके दोस्त आएंगे, बोलेंगे अरे तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, ये कब करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। बट एट दैट टाइम यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट आई हैव माई फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दीज 3 थिंग्स, देन आई विल मूव अहेड। द आर्ट ऑफ डूइंग लिमिटेड थिंग्स will help you be better than others. It will help you to be more productive. It will help you to retain things better. It will increase your confidence because when you start achieving your targets, when you start achieving your goals, you will be a different person altogether. ठीक है? So these are the 7 key principles which I have learned from my students. ऐसा नहीं है कुछ मैंने बनाए हैं, with my constant discussions, constant meetings with all of them, understanding their problems. So this is something, a diamond for you. Please try to incorporate these 7 principles. In case you have any doubt,
In case you need any help, in case you need anything, please do not hesitate and email us at hello@edutab.co.in. ठीक है, इस पे मेल कीजिए. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी टुवर्ड्स योर गोल. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दीज 7 की प्रिंसिपल्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टडी प्लान्स, देन द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो भी आप ढूंढ रहे हैं. इन 7 प्रिंसिपल्स को समझिए, द थिंग्स विल गेट क्लियर. यू विल start seeing the way in the dark, and once you start following the right path, you will surely reach your destination. ठीक है, so with this I take your leave guys. There is a lot of work to do on our side and on your side. It has to be double effort from your side and our side, because days are limited and we have to do some great things ahead. Have a nice day. Bye bye.